All right, okay. So, hi everyone, good evening. We shall start with this session now. So, yeah, good evening everyone. Uh, I'm Khushi, the GDSC lead of GDSC SRCSW, and thank you so much for joining in for the Solution Spark, which is the title of today's session. And today's event is all about challenge, solution challenge discussion, collaboration, and team networking. All right, so I will just make it clear in the beginning that it is not a formal event, so-called event, where you have to, take notes or learn something. No, it is a community call where you are free to express your ideas, and you will have you can get a moment to interact, to connect with the people and to form your teams. Okay, so before we begin, I would just resume with the formalities that I always do with the events. First of all, before we actually start this short community call, which should like last for 20 to 20, 25 minutes at most, in case you don't interact much. So yeah, first things first, you can turn on your videos, but please try to keep yourself on mute while we discuss the content of these presentations. You will get a moment to discuss your queries in the end, and obviously you have the chat section enabled, so you can let us know. Second thing, please try to be interactive. Don't make it an online class because it is our first ever community call. And if this goes successful, if at least 10 people out of these 22 attendees choose to interact, and they get to learn something, they get some sort of uh, takeaway from this event, we would be having more community calls. And like last thing, let me know what are your preferences. Like first of all, let us keep it very interactive. You can keep those emojis always on, in this meeting. And like second thing, please let me know what would be your preferred language. Like should we continue this community call in English, or would it be great with the English and Hindi both? Like I don't want to make it sound like an online classroom, so you can let me know your thoughts. I guess English and Hindi works fine. English works fine. You can give a thumbs up or thumbs down. Okay, both works fine. All right, people. So, good evening. Welcome to Solution Spark, and let's just get started. So, first of all, simple सा एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि आप लोगों ने Solution Challenge के events के posters अभी तक देखे होंगे, right? Yes or no? Like anyone, thumbs up, thumbs down. I guess everyone in the group has seen some posters of the event by Solution Challenge, right? Apart from the core team, anyone would like to acknowledge? In case you haven't seen, you can let me know कि नहीं देखे. तो अभी आप देखोगी कि देखो GDSC, चाहे हमारी GDSC हो चाहे किसी और कैंपस की, तो अभी करेंटली GDSCs में बस एक ही चीज की बस चल रही है, वो है सॉल्यूशंस चैलेंज. एंड जितने भी इवेंट्स और वर्कशॉप्स हो रही हैं, वो सब सोल्यूशन चैलेंज के आसपास रोटेट हो रही है. ठीक है, तो बात करते हैं कि सोल्यूशन चैलेंज है क्या. Solution Challenge, it is an annual contest by Google, and it is being organized, through, for the GDSCs, and, by the GDSCs and for the GDSCs something. And it is like nothing more. ये बस एक तरह का competition है, contest है, which is like 2 to 3 months long when the registration and the submission starts. And इस contest का बस एक ही purpose है कि जो participants हैं वो कुछ इनोवेट करें, वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें. लाइक वो कुछ एप्लीकेशन या कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी वेब एप्स, कुछ ऐसा प्रोटोटाइप बिल्ड करें जिससे एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो. सिंपली आप ये कह सकते हो इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, लाइक इट इज अ हैकेथॉन, एन ऑनलाइन हैकेथन जिसमें आप या तो सोलो पार्टिसिपेट करो या आप टीम बनाओ. एंड या यू हैव टू बिल्ड समथिंग, इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, it could be an web app, it could be anything. Okay, so this is the main agenda of the solution challenge. It is nothing more complicated. But solution challenge में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, the things have been mentioned here. First of all, for this solution challenge, आपको अपने project में आपको like project build करना है obviously. पहले आपको register करना है. Second, submission phase जब start होगा तब आप अपने projects को submit करोगे. ठीक है, like after you have built it. Yeah, you will be getting the problem statements home. Exactly.
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए आपको यूएन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम 17 एसडीजीज कहते हैं, आपको इन्हें रेफर करना है। ठीक है, तो ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस पे हम आएंगे कि व्हाट आर दीज एक्चुअली। तो या दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द सोल्यूशन चैलेंज। वी विल बी कमिंग टू दीज पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन। नाउ the main thing is like, why solution challenge? आपको solution challenge का info कोई भी बता देगा, either me as a GDSC lead, or some other GDSCs, some other participants, anyone else outside GDSC. But yeah, you should be aware of that, why you should be participating in the solution challenge. Because see, first of all of you, I feel that majority of you are from the computer science course or something. तो या तो कोई engineers होंगे या तो कोई computer science students होंगे, right? So main thing is that people usually know how to code, right? And yeah, the thing is that you should be, if you're someone in computer science and अगर आप कुछ कोड करके बिल्ड नहीं करते हो, इनोवेट नहीं करते हो, तो दैट वुड बी प्रिटी लेम फॉर आवर एग्जिस्टेंस, राइट? लाइक व्हाट्स द फन इन डूइंग कोडिंग अगर आप कुछ बिल्ड ही नहीं करो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट इफ यू पार्टिसिपेट इन द सोल्यूशन चैलेंज। सेकेंड, यू गेट अपॉर्चुनिटीज। आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको मेंटोरशिप मिलती है, एंड आपके पास लाइक अभी हम प्राइजेस पे भी आएंगे, बट द थिंग इज की आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाओगे, यू विल बी एबल टू collaborate, you will be able to network with the people, not just in India or in your state or in your campus, worldwide. You can even form teams with the people outside the country, in case you feel like okay, मुझे अपने दोस्तों के साथ टीम भी बनानी। ठीक है, apart from it, like, we have some other points as well. We have exciting prizes, okay, we have growth opportunities, and yeah, obviously अगर ये 3 महीने की हैकेथन है, अगर आप एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे कुछ न्यू सीखो, भले आप 1 घंटा कोड करो या फिर आप एक्सप्लोर करो, तो यू वुड बी बेटर नोइंग कि हाउ मच दोज लिटिल स्टेप्स काउंट, रादर देन कि एक रात पहले पढ़ने से बेटर, और लाइक डे बाय डे कुछ ना कुछ करने से। ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन केस यू फील दैट मुझे क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ टू गेट स्टार्टेड। मोटिवेशन वाली बात है कि अरे हमें नहीं आती कोडिंग, या डर लगता है, या इससे पहले हैकेथॉन से पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो अभी हम ओपनली डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव अ फ्यू पीपल इन द मीटिंग हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द हैकेथॉन्स। ओके, एंड कुछ होंगे जो न्यूबीज होंगे, बट या वी वुड बी डिस्कसिंग एवरीथिंग राइट हियर, सो डोंट वरी। नाउ participate करना super easy है। Again, see, it is the first ever community call that we have, and I know it is in the midst of the examinations, both for DU and other universities. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, तो आप प्लीज इस स्लाइड को एक बार ध्यान से सुनना, एंड अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आप टीम बनाओगे तो उन्हें भी यही चीजें करनी पड़ेगी, भले आप टीम लीडर हो, चले आप डिजाइनर हो या डेवलपर हो, आप कोई भी रोल लो अपनी टीम में। ओके, तो सबसे पहली बात है कि आपको किसी जीडीएससी को ज्वाइन करना है। अब देखो, जीडीएससी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जीडीएससी लीड बनना है या फिर कोर टीम में आना है या वॉलंटियर बनना है, नहीं। आप लोगों ने जैसे हमारे जीडीएससी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, एंड सेकंड क्या है, जो पेज है, जो हमारा कम्युनिटी पेज है, जहाँ पे 777 मेंबर्स हैं बाय गॉड्स ग्रेस ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको बस एक चैप्टर ज्वाइन करना है किसी भी जीडीएससी का, मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट, भले ही आपके कैंपस में जीडीएससी हो या ना हो। तो लाइक सपोज देयर इज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट टाउन और समथिंग, लाइक जहाँ पे टायर 3 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जीडीएससी नहीं है, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन join any Google Developer Student Club on the website, join the WhatsApp group. So yeah, you are a member, you are the chapter member of the GDSC. Step number 1. Second, you have to form a team and register. अब registration form का link circulate हो रहा था, but don't worry, अभी दोबारा से circulation start होगा, because we also had examination, so we had put the work on hold. In between. So the thing is कि team participation का देखो ऐसा है, if you are a solo player कि आप like अकेले ही बाजीगर हो, तो it is the opportunity for you as well. अगर आप टीम प्लेयर हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप 4 लोगों की टीम में, लाइक इंक्लूडिंग यू and like 3 other people, you can form a team and you can participate. ठीक है, तो it's like team size can be 1 to 4 people. Okay, and उसमें से भी क्राइटेरिया तो यही होता है कि स्टूडेंट्स होने चाहिए, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल्स को यूजुअली नहीं लेते, बट अगर in case you feel that okay, this person has just graduated, or ज़्यादा what you can say, there's not a huge gap in academics, जो वो break होता है, academic break, वो नहीं है, तो you can take that person in, as long as you are someone who is a part of GDSC as a chapter member. Okay,
नाउ देन यू हैव टू सेलेक्ट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो बाकी कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, आपको हमेशा थीम्स मिलते हैं, लाइक कह देगा कि आपको ऐसा एआई चैटबॉट या टूल बनाना है जो मेडिकल में ये वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या फिर एजुकेशन सेक्टर में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बट यहाँ पे ये है कि आपके पास ना यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो टोटल 70। तो अगर आप उन सारे गोल्स को देखोगे तो यू विल फाइंड आउट। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। अभी तक अगर सबको समझ आ रहा है तो प्लीज ड्रॉप अ थम्स अप, बिकॉज दिस वोंट बी अ लॉन्ग कॉल। इट वुड यू नो barely last for like 10 to 15 minutes. All right, thank you so much. Give me a minute, I will be just coming to these sustainable development goals. Yeah, so this is the website. Obviously, you will be getting the link for this website, so don't worry. ये आपकी ना ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ये सब ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं बाय जीडीएससी ग्लोबल टीम। तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जी कोई भी जीडीएससी की कोर टीम पार्टिसिपेट कर सकती है इन इवेंट्स में एज अ अटेंडी ऑब्वियसली। तो या coming to this website, here you have everything about it, from commonly asked question to your queries to these prizes and everything. तो जो देखो यहाँ पे ये सेक्शन है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ ऑन कमिंग मोर टू इट, ये सारे गोल्स होते हैं। देखो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्वालिटी एजुकेशन, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सी मेनी थिंग्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे। रिसेंटली हमने अभी तक 3 सोल्यूशन चैलेंज पे सेशंस कराए हैं, और तीनों में हमारे जो स्पीकर्स थे दे वर एक्चुअली द विनर्स ऑफ द सोल्यूशन चैलेंज। One of them were in the top three. One of them was in the top 100, and one of them was in the top 10. तो एक इंसान का प्रोजेक्ट था, लाइक इट वाज फॉर द हंगर, for the food management and hunger. Like that winner was from Turkey. Like she just discussed about the project. So it was more on जैसे कि फूड मैनेजमेंट, खाना वेस्ट जाता है तो आप उस खाने को डोनेट कर दो, या फिर मतलब अगर कहीं पे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइक खाने के लिए कुछ नहीं है एंड दे आर वेरी पुअर, सो इट वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। इट वाज बिल्ट ऑन फ्लटर, बैक एंड में फायरबेस थी, फायर स्टोर थी, ठीक है, फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड डेटा स्टोरेज। तो अगर मैं सपोज यही सोचती हूँ कि ठीक है, मेरे लोकल एरिया में, सपोज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन और विलेज जहाँ पे सेम इश्यू परसिस्ट कर रहे हैं काफी टाइम से, मैंने इसके लिए सोचा कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर ये ऐप बनाते हैं। तो उस ऐप के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, मुझे इन थीम्स को देखना है, ठीक है। पहला तो जीरो हंगर, बिकॉज सी ये हंगर रिलेटेड ही है, फूड मैनेजमेंट करना है, तो ये जीरो हंगर के अंदर ही कैटेगरी में आता है। तो हमारा कौन सा रूल यहाँ पे अप्रूव हो रहा है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इट इज जीरो हंगर। सेकेंड आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इसको भी डाल सकते हो। एंड देखो, अगर आपको ना ज्यादा आइडिया नहीं है तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स हैं और ये सब कुछ है। तो देखो ना, जब अगर आपने सोच लिया कि ठीक है टीम बन गई, पार्टिसिपेट करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया, नेक्स्ट फेज आता है आइडिएशन का। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्रोजेक्ट बिल्ड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना डीप एनालिसिस या रिसर्च करते हो, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आपने रिसर्च कर लिया और आपने उस प्रॉब्लम की लाइक तह तक जाके एक सोल्यूशन सोच लिया, ट्रस्ट मी ऑन दिस, भले ही तुम्हारा कोड उतना भी अच्छा ना हो, तुम्हें लाइक डेवलपमेंट उतना अच्छा कोडिंग नहीं आता होगा, यू हैव चांसेस टू गेट सिलेक्टेड इन द टॉप 100, ठीक है। बिकॉज अभी तक जितने भी हमने विनर्स के साथ इंटरेक्शंस किए हैं, दे सेड कि लाइक फ्यू ऑफ देम वो कंप्लीट न्यूबीज। एक महीने ने फ्लटर सीखी थी, लाइक इसमें पार्टिसिपेट करते करते, तो इट्स लाइक 2 मंथ्स में उसने सीखी, देन ऐप बनाया, एंड विद हर टीममेट ऑब्वियसली। तो लाइक ऑब्वियसली लाइक जिस जो 2 साल से कर रहा है प्लस जो 2 महीने से कर रहा है, काफी डिफरेंस होता है, बट स्टिल शी गॉट इन टू टॉप 10 ऑफ द सोल्यूशन चैलेंज। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस। आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं हंगर वाले पे आई थी, वो टॉपिक था, अ, हम लोग इस पे विजिट करेंगे, इस पर्टिकुलर जो आपकी डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको ना कंटेंट मिलेगा, इट इज पोस्टेड बाय यूएन इटसेल्फ। लाइक इसमें काफी सारा डेटा है। अगर आपको नहीं पता कि पॉवर्टी या हंगर क्या है, यू कैन गो थ्रू दीज सेक्शंस एंड यू विल नो एवरीथिंग। ओके, व्हाट इज इनइक्वालिटी, व्हाट इज parity, what are the parities which exist in the world, what is hunger। तो everything is on the website, it's just कि आपको रिसर्च अच्छे से करनी है। ओके, now coming back to the slides, I hope this point was clear कि कुछ भी बनाने से पहले रिसर्च करने में टाइम ज्यादा लगाना, कोड करने में टाइम नहीं लगेगा। यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव बार्ड, यू हैव ब्लैक बॉक्स, यू ऑल्सो हैव मेनी गिटहब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स।
you have many alternatives, but the thing is कि अगर research अच्छे से की होगी तो no one is going to be able to stop you from this. You would be invincible and unstoppable. Step number 4 is identify, learn and build the solution. Like you have to do the research, you have to create a problem statement on your own. Okay, and then on that problem statement आपको एक solution build करना है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइनलाइज एंड सबमिट. तो अगेन अगर प्रोजेक्ट बन चुका है, गिटहब पे पुश कर दिया, टीम ने काम किया, अकेले काम किया, देन उसके बाद यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट. ओके, नाउ अब टाइमलाइंस पे आते हैं. अब यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे 1 दिसंबर से, इफ एनी वन नोटिस्ड. यहाँ पर 11 जनवरी को वी हैव अ ग्लोबल किक ऑफ इवेंट विच इज बाय GDSC ग्लोबल ऑब्वियसली. इसमें यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, वी विल बी सर्कुलेटिंग दिस tomorrow itself. Okay, now submissions begin from 22nd January. Like I told you, 1 दिसंबर से लेके 22nd January में you have a very good amount of time of like 4 to 5 weeks. Like जिनके एग्जाम्स नहीं थे लोगों ने तो इस टाइम को यूटिलाइज किया था, but still you have time because 22nd January से सबमिशन शुरू हो रहे हैं लेकिन खत्म हो गए 22nd February तक. तो अगर आप आज 7th Jan या 8th Jan से काम शुरू करते हो तो आइडिएशन में आपको 2 या 3 दिन लगने चाहिए मुश्किल से. ठीक है, उसके बाद टीम फॉर्मेशन 1 दिन करो, 2 दिन में टीम फॉर्म हो जाएगी. उसके बाद आप बिल्ड करना स्टार्ट करो. अगर आप 4 वीक या 3 वीक्स का भी रोड मैप रखते हो जिसमें आप रोज कोड करोगे तो आप आराम से इतने टाइमलाइन को अटेन कर सकते हो. बिकॉज देखो सबमिशन 22nd Feb तक खत्म हो रहे हैं, तो इट्स तब तक रजिस्ट्रेशन भी ओपन रहेंगे ऑब्वियसली. तो या यू हैव टू the timeline is very nice. You still have like more than 1 month to build something crazy from the tech stacks that you know or that you don't know. ओके, इसके बाद की जितने भी ये चीजें यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ये तो देखो बात की कहानी है, इसको हम बात की कॉल्स में भी डिस्कस कर सकते हैं. तो दिस इज फॉर द विनर्स हु सिक्योर इट. और हाँ, अगर इफ यू आर वंडरिंग कि प्राइजेस क्या होते हैं, तो देखो पहली बात तो ये है कि जो सिलेक्ट होते हैं इनमें से टॉप 100 सिलेक्ट किए जाते हैं हर साल. ठीक है, तो वो टॉप 100 की मेल आती है पार्टिसिपेंट्स को भी, नॉन पार्टिसिपेंट्स को भी, लाइक जिसने एटलीस्ट रजिस्टर किया होगा. टॉप 100 के बाद में उनको मेंटोरशिप मिलती है ताकि उसमें से टॉप 10 शॉर्टलिस्ट हो सके, एंड देन टॉप 10 के बाद टॉप 3 एमर्ज एज द विनर, एंड टॉप 100 को प्राइजेस मिलना शुरू हो जाते हैं. लाइक टॉप 100 को सपोज इतने प्राइजेस, टॉप 10 को थोड़े ज्यादा, टॉप 3 को तो काफी सारे, लाइक दे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वेरी गुड dollars. And also you will get to know everything from the website itself. Okay, now ये submission criteria है. You can we can discuss it in the next week's call as well, because अभी I don't want to overwhelm you people, because it could be the case first hackathon हमेशा थोड़ा सा ऐसी रहती है. या यू कैन सबमिट टिल 22nd February, बट हाँ बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि 20 तक खत्म कर देना सबमिट करके. उसके बाद गिटहब रिपोजिटरी को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो गिटहब से तो तुम्हारा कोड देखेंगे, तुम्हारे टीम का वर्क देखेंगे कि किस किसने कोलैबोरेट किया, किसके कितने कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, कैसा कोड किया. तो या just do it. All right, just you people can take a screenshot, though you will get this presentation. But yeah, this is not something that you should think of right now. पहले ideate करो, टीम बनाओ, सोचो कि हाँ करना है पार्टिसिपेट, अभी बैक ऑफ नहीं करना. उसके बाद when your product will be ready, जब वीडियोस वगैरह बनती है, लाइक प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करना, ये करना, उस टाइम पे यू कैन कीप दी सबमिशन क्राइटेरियाज इन माइंड. ओके, अभी तो योर थिंग शुड बी कि आप आइडिएट करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचो, अपने लिए अच्छे टीम मेंबर सेलेक्ट करो जो आपका पीछा ना, मतलब आपका साथ ना छोड़ दे बीच में ऑब्वियसली. Okay, now just a quick question just to see कि आप लोग सो नहीं गए हो, बोर नहीं हो गए हो in the previous 20 minutes. What other Google developer technologies you have heard of? You can quickly type your answers in the chat section, just like fastest finger first. What are the Google developer technologies you have heard of? Come on, people. Okay, Flutter, Firebase, great. Okay, many people have a Flutter and Firebase. Anything else? Anything unique? Okay, we have Angular. All right. Cloud. Okay, Java is little skeptical, but yeah, we will search for it. Anything else? Anyone else? We have like other people as well, so you can tell. Okay, one more question. If you are given an opportunity to build something for the solution challenge, like आपके resume में तो project एक add हो ही जाएगा, क्योंकि देखो resume में ना CS students को एक project तो चाहिए होता है obviously, so you will be able to create a project for your resume as well. So what would be
फायर लाइब्रेरीज ऐप डेवलपमेंट, ओके। देयर इज अ कैच, ऐप डेवलपमेंट में कौन कौन से फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस हैं बाय गूगल डेवलपर टेक्नोलॉजीज? Om, you answered it correct, but yeah, just mention the technologies in sense of languages and frameworks. Yeah, Kotlin. What do we have else? What else do we have? Flutter का syntax किससे मैच करता है? Syntax structure, that child and parent वाला चीज. There's a framework, very popular. You can call it a UI toolkit actually. Okay. Yeah, so I was coming to a question कि चलो let's have a discussion. You can turn on your videos and mic as well. If you're given an opportunities, देखो यहाँ पे you can form a team. ठीक है, ये टीम फॉर्मेशन के लिए यही है, इसलिए टेक स्टैक पूछ रही हूँ मैं आपसे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कुछ बनाओ, तो आप क्या चूज करोगे? पहला वेबसाइट बनाओगे या फिर एप्लीकेशन बनाओगे? क्या बनाओगे? मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट सेक्शन और यू कैन अनम्यूट। नहीं सोचा तो यू कैन से एन ए, नॉट अप्लाई, नॉट एप्लीकेबल, यू कैन से एन ए। ओके, मेनी पीपल आर फॉर वेबसाइट सर्चेस फॉर वेब एप्स। ओके, एन ए नहीं सोचा है। ओके, ऑल राइट। सेकेंड थिंग, देखो, इफ यू आर थिंकिंग ना कि देखो प्रोजेक्ट भी सोच लिया कि ठीक है वेब वर्जन बनाएंगे, लेकिन टेक स्टैक कौन सा यूज करें, दैट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेरी दैट वी हैव। तो देखो, पहली बात तो फिजिबिलिटी देखना। सपोज करो मुझे कुछ ऐसा वेबसाइट या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, सपोज वेब एप्लीकेशन, वेब वर्जन ही होगा बट वो ऐप की तरह, इंटरफेस उसका ऐप की तरह होगा, जो जिसमें थोड़ा सा लाइक होता नहीं है, जैसे कि आई हैव दिस सेट्स, व्हाट आई वांट इज कि मैंने इसे स्कैन करा अपने कैमरे से, तो उसमें दिखाना चाहिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल होता है ना, सपोज मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो देयर आर सम सम फ्रेमवर्क्स फॉर वेब एमएल थिंग, तो यू कैन इम्प्लीमेंट दोस्त। तो द थिंग इज कि जो भी आइडिया सोचोगे उसके फीचर्स लिख लेना कि क्या क्या डालोगे। उसके बाद आप लोग क्या करना, उसके बाद डिसाइड करना कि ओके वेब में कर रहे हैं तो कौन सा स्टैक चूज करें। मर्न स्टैक कर रहे हो तो फिर बैकएंड में देखो, ध्यान ये देना कि एटलीस्ट एक गूगल डेवलपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ओके, बैकएंड में फायरबेस लगा लो, वेल एंड गुड। आप गूगल की एपीआईज यूज कर लो, जैसे गूगल मैप्स की एपीआईज, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वर्कस्पेस यूज कर लो। तो द थिंग इज कि आपको ये टेक्नोलॉजीज यूज करनी है। और अगर अभी भी किसी को डाउट है कि व्हाट आर द गूगल डेवलपर टेक्नोलॉजीज, सो लेट्स कम बैक टू दिस पेज। देखो, अगेन ये सोल्यूशन चैलेंज का पेज है। आप एफएक्यू में आओ, तो यहाँ पे देयर इज अ सेक्शन, participate, solution challenge, demo, submission. Wait, just wait, just wait. सो अगर देखना है तो आप यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड देखो, ये सारी आपकी गूगल डेवलपर टेक्नोलॉजीज हैं। एंड्रॉइड में ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट, वी हैव क्रोम ओएस, वी हैव फायरबेस, फ्लटर, गूगल असिस्टेंट, गूगल क्लाउड, गूगल मैप्स, पे एंड गूगल वॉलेट, टेंसरफ्लो, एंड many thing more. So what you can do is you can first do a great research कि कौन सी गूगल डेवलपर टेक्नोलॉजी आपके टेक स्टैक को पे सूट करेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर आपकी सपोज मैंने मोन स्टैक पे कुछ बनाया, आई यूज सिंपली रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस एंड दिस मोंगो डीबी थिंग, एंड मैंने सबमिट कर दिया, बट इसमें कोई गूगल डेवलपर टेक्नोलॉजी है क्या? आई नो, वी डोंट हैव इट। This platform, yeah, it has kind of basically na देखो, wait, let me send you this, just wait on। ये जो वेबसाइट है ना ओम, तो ये बेसिकली आपकी developers.google.com है। यहाँ पर आपको सारे, सपोज मैं फ्लटर सीखना है, मुझे फ्लटर सीखना है, तो पहला ऑल्टरनेटिव तो है कि मैं यूट्यूब से जाके सीख लूँ। यहाँ पे नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस में आप सीख सकते हो, यहाँ पे कोड लैब्स होती हैं ऑनलाइन, जिससे आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म से भी आप सीख सकते हो, आपको कंटेंट काफी सारा मिल जाएगा सीखने के लिए। ठीक है, तो दिस इज with the technologies. Now what do we have next? Okay, now first of all you can take a quick screenshot of this QR code. You have to check the website properly. देखो, कोई भी हैकाथन होती है, चाहे आप कहीं एडमिशन ले रहे हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमेशा वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहते हो, राइट? बिकॉज कोई भी थर्ड इंसान से, थर्ड ह्यूमन से पूछने से बेटर है कि आप वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर लो। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेबसाइट QR, though you will get it in the group as well, but yeah, it's better to have something in the gallery as a reminder that okay, you attended the session. Once you're done, please drop a thumbs up or react with a thumbs up so that I can proceed forward. Okay,
ऑल राइट, नेक्स्ट पास्ट इवेंट्स. अब सपोज करो यू आर समवन जिसको विनर्स के एक्सपीरियंसेस सुनने हैं. ठीक है, अगर आपने पास्ट इवेंट्स को मिस आउट किया है तो हमारे ये दो सेशंस की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब चैनल पे. द चैनल नेम इज GDSC SRCSW. वी विल शेयर दीज रिकॉर्डिंग्स अगेन, बट आई वुड सजेस्ट यू कि इन दोनों रिकॉर्डिंग्स को आप अच्छे से सुन लेना. यू विल ऑल्सो यू कैन यूज सम AI टूल्स टू गेट the subtitles and what was actually discussed in these events. But yeah, please watch these meetings if you want to know कि जो winners थे उनके projects क्या क्या थे, because उन्होंने अपने project को demo भी किया in one of the sessions. So feel free to watch these past events. Now this is actually the registration form for solution challenge, and it is important कि आप सब लोग register करो. Suppose I have a team, I have like two more members, so along with me those two also have to register. Submission कोई एक ही करेगा obviously, but everyone has to register, and this is the QR code. You will be getting the link again, but yeah, ध्यान देना कि जब कॉलेज सिलेक्शन की बात है GDSC की, तो आपको शहीद राजगुरु कॉलेज सेलेक्ट करना है. बिकॉज सपोज in case your project is good enough, maybe it qualifies for top 100, maybe it doesn't, but there are chances you can get rewards from our GDSC if you participate. Okay, so इसीलिए if you select our GDSC, तो it will increase your chances of getting some cool swag kits and rewards, obviously. Okay, and shout outs are, yeah, they are very common. Now, this is a team formation group. The name of the group is GDSC SRCSW Connect. So, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दो, बताओ कि आप कौन से UN गोल्स पे काम करना चाहते हो. And yeah, keep your DMs open ताकि you can form a team. And also you can form a team with the people of other colleges as well. But आपको अपना बस GDSC एक ही चूज करना पड़ेगा as a participant. Okay? I hope everyone has taken the screenshot for this particular group. Now, there's one more thing, like starting from the next week, link from the website along with the barcode, I can access it. Okay, what I'll do is I'll share all the links in the group itself. Like आप अभी इससे पहले का जो group था, इसे join कर लेना. वैसे I will circulate it in the main group. I hope you're in the main group of GDSC SRCSW. Okay. So yeah, like starting from next week, we will be having many sessions around machine learning and app development, because देखो web का content काफी मिल जाता है online. We will get many roadmaps, but what we feel like कि ML or application development, whether it's Flutter, whether it's Kotlin, Jetpack Compose, or even Java, like we don't have quality content over YouTube or somewhere else. And like paid courses से तो बचने की कोशिश किया ही करो, because obviously engineering में इतना पैसा खपा रहे हो, paid courses क्यों लेने जब कोई चीज free में मिल जाती है तो. So we will be having these sessions around ML and app development every weekend. So it would be great if you join in and your friends join in. And yeah, we appreciate a lot of feedback from you people. तो अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे होना चाहिए, this topic is something which is not covered in most of the areas of learning, so you can let us know your thoughts or ideas about the next sessions. But yeah, they will be organized in every weekend so that everyone can join and learn. Now, I guess this is it with the presentation. So yeah, I hope the pointers were clear with the solution challenge. अगर अभी किसी को कुछ भी discussion करना है, किसी के पास कोई idea click हुआ है, or you want to connect with the people, you can express your thoughts here in the meeting. Else we will be winding up in like 5 minutes.